So our praise makes a throne for God. And only when God sits on the throne, your problems are going to vanish. Because if you sit on the throne, you will not be able to do things. But if God sits on the throne, He'll make the impossible things possible. He'll make things happen what you couldn't make happen. So learn to worship God. Some people have only 3 songs. That 3 songs they are singing from the last 10 years. You don't take interest also in learning new. Okay. See, anytime when we want to learn anything new, we challenge our brains. तो हम Our brains are always in a comfort zone. We don't want to work. We don't want to learn anything new. It's not tough. Very difficult. बहुत लगाऊं But if you train your mind to do new things, पर it will bless you with new blessings. तो परमेश्वर Use your brains. New things. Try to worship God with new songs. तो नहीं We become the person we are. The more we worship God, we become more like Him. Let's pray. Father, we thank you for this time. पिता समय के लिए धन्यवाद Thank देते you for your word. आपके वचन के लिए धन्यवाद देते Thank you, Lord, that you anoint me even as I speak your word. धन्यवाद देते परमेश्वर के आपासा का अभिषेक करना जैसे वो आपके वचन Use करते my tongue as an instrument for your glory. और उनके जबान को जो है आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं Amen. आमीन So today I want to talk to you about praise and worship. We are going to a spiritual aspect today, and I want to talk to you about praise and worship. और आज हम एक जो है वो आत्मिक विषय पे जो है वो सीखेंगे जो है स्तुति आराधना के बारे में आज हम सीखेंगे And why do we come to church and why do we sing songs and how it will benefit our lives? और हम क्यों कलीसिया आते हैं और हम क्यों गाने गाते हैं और ये कैसे हमारे जीवन पे लाभ लाएगा So let's go to Psalms 96 verse 8. Sorry. Psalms 96 verse 8. और हम भजन संहिता का 96 अध्याय और 8वां वचन देखेंगे Yeah. और जैसे वचन कहता है यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ So here the Bible is saying when you're coming into the presence of God, bring an offering. और यहाँ पे पवित्र शास्त्र कहती है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो एक भेंट लेकर आए Offering is not only money, और भेंट सिर्फ पैसे ही नहीं it है is also worship. वो एक आराधना भी So है when you are coming to church and when you are worshiping God, you are bringing an offering to God. तो जब आप कलीसिया आते हैं और आज जब परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आप परमेश्वर के लिए एक भेंट लाते हैं That's why when you come to church, you have to come on time because first we start with praise and worship. और इसलिए हम जब कलीसिया आते हैं तो हमें समय पे आना जरूरी है क्योंकि हमारी कलीसिया की शुरुआत ही स्तुति आराधना Why से don't होती we है। start with word? Why don't I start with word? Why we start with praise and worship? और पासवान जो है वो कलीसिया की शुरुआत वचन से क्यों नहीं करते हैं स्तुति आराधना से क्यों करते Anybody हैं can ask, tell me why we start with praise and worship? और कोई बता सकता है कि हम स्तुति आराधना से ही क्यों शुरुआत Why करते we हैं don't start with word? Why we don't start with breaking of bread? Why we don't start with offering? और हम वचन से या प्रभु भोज या दान दशवांश के द्वारा क्यों नहीं शुरू करते हैं Anybody can answer this? Why do we start with praise and worship? क्यों हम स्तुति आराधना से कलीसिया की शुरुआत करते हैं Why? Anyone? Okay, Thanksgiving. जैसे सिस्टर ने कहा कि एक तरीके से धन्यवाद देना है Anybody else? When you welcome someone, you celebrate. When you welcome Okay, he's saying celebration, और जैसे हम उत्सव मनाने के लिए connecting with God. Okay. परमेश्वर से अपने आप को जोड़ने के लिए See, praise and worship is our part to God. Word is God's part to us. तो स्तुति आराधना जो है वो हमारा भाग होता है परमेश्वर के लिए और जो वचन है वो परमेश्वर का भाग है हमारे So लिए when you don't attend praise and worship, तो जब हम स्तुति आराधना में शामिल नहीं you are होते not completing your part to God. तो हम हमारा हिस्सा जो है वो पूरा नहीं करते हैं परमेश्वर के If लिए you don't do your part well, God will not complete His part to you because you are not fulfilling your aspect. और अगर हम हमारा भाग जो है वो अच्छे से नहीं करेंगे परमेश्वर के लिए तो परमेश्वर भी अपना हिस्सा हमारे लिए नहीं करेगा क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा है हम उसे पूरी नहीं People करते don't get it, and Satan will try his best for you to come late. और शैतान अपनी मुमकिन कोशिश करता है कि हम देरी से He पहुंचे will give some work to you. वो हमें कुछ काम दे He देगा will make you come after worship. वो हमें आराधना के बाद I लेकर feel आएगा if you miss worship, don't come to church. और जैसे पास्टर ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है अगर हमारी स्तुति आराधना छूट जाती है तो हम कलीसिया ना आए Because you are not fulfilling your part to God. क्योंकि हम हमारा जो हिस्सा है वो परमेश्वर के प्रति पूरा नहीं See, करते man and God work in tandem. और जो मनुष्य है और परमेश्वर जो है वो दोनों एक साथ If काम I करते don't हैं। welcome God, He will not come. और अगर मैं परमेश्वर का स्वागत नहीं करूंगी तो वो नहीं God आएगी never forces Himself on us. और परमेश्वर कभी भी जबरदस्ती अपने आप को नहीं थोपता हमारे ऊपर He waits for you to open your doors. वो इंतजार करता है कि हम हमारे दरवाजे उसके लिए खोलें That's why it's important to do your part, that God will fulfill His part, that is the word of God.
और इसलिए बहुत महत्व है कि हम हमारा जो हिस्सा है परमेश्वर के प्रति वो पूरा करें, तब वो उसका जो हिस्सा है वचन के द्वारा वो पूरा In करेगा। Christmas, I'm going to give a prize to someone. और क्रिसमस के दिन जो है पासवान किसी को इनाम देंगे, Who comes consistently late will get prize from me. और जो नियमित रूप से कलीसिया देरी से आता है उसे पासवान And के I द्वारा am इनाम not मिलेगा। bothered उसको बुरा लगा। If you did wrong, be bold. और पासवान को परवाह नहीं है कि उसे अच्छा लगे या बुरा लगे, अगर तूने गलत किया है तो उसमें हिम्मत So रख। praise and worship is like an offering. तो स्तुति आराधना एक तरीके की भेंट है। When you come to God's presence, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में we आते give हैं Him our worship like an offering. तो हम उससे आराधना चढ़ाते हैं एक भेंट के नाम। Now, praise and worship is divided into 3 parts. और स्तुति आराधना जो है वो 3 हिस्सों में भागी गई है। It's not only praise and worship, it's divided into 3 parts. और ये सिर्फ स्तुति आराधना ही नहीं है, पर इसे 3 हिस्सों में भागा गया है। First part, पहला हिस्सा thanksgiving. धन्यवाद देना, Second part, दूसरा हिस्सा praise. स्तुति करना, Third part, तीसरा हिस्सा worship. आराधना करना। First part, पहला हिस्सा thanksgiving. धन्यवाद देना, Second part, दूसरा हिस्सा praise. स्तुति करना, Third part, तीसरा हिस्सा worship. आराधना करना। नितिन, what is praise? तेरे हिसाब से praise क्या है? What is the meaning of praise? मतलब means according to this, मतलब praise क्या है? हाँ, but is praise fast song? नहीं ना? Some people have that praise means fast song, worship means slow numbers. और किसी को ऐसा लगता है कि स्तुति करना जो है वो जो फास्ट गाने होते हैं वो गाना होता है, और आराधना करना जो धीमे गाने होते हैं वो गाना होता है। And why it is into 3 parts? Let me tell you. और ये 3 हिस्सों में क्यों भागा गया है हम आपको बताएंगे। Look with the screen. Picture. You're putting something on the screen. Yeah. So this is the tabernacle of God in the Old Testament. और ये पुराने करार में परमेश्वर का तंबू था, It is divided into 3 parts. और इसे भी 3 हिस्सों में भागा गया है। You see this part outside that rectangle piece, the long piece outside that is called the outer court. और ये जो पीला जो हिस्सा है, जो लंबा हिस्सा है, उसके बाहर का जो हिस्सा है उसे बाहरी आंगन कहा जाता Now the है। yellow thing is divided into 2 parts. और ये जो पीला हिस्सा है इसे 2 हिस्सों में भागा है। Holy place and holiest of holy. एक है पवित्र स्थान और एक है अति पवित्र स्थान। 3 parts, outer court, 3 हिस्सा, पहले बाहरी आंगन, holy place, पवित्र स्थान holiest of holy. और अति पवित्र स्थान। That's why praise and worship is divided into 3 parts. Thanksgiving, और इसलिए स्तुति आराधना को भी जो है वो 3 हिस्सों में भागा गया है। पहला है धन्यवाद देना, praise, स्तुति करना Worship. और आराधना करना। understood? Or you want me to repeat? The tabernacle was divided into 3 parts. और जो तंबू था पुराने करार में उसे 3 हिस्सों में भागा गया था। Vijay, what is the tambu? What is क्या था इसमें? Very good. The God's presence was in this tabernacle. और इस तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति थी। It was never everywhere. It was just in that covenant. और उस जमाने में हर काहिन पे नहीं होती थी, सिर्फ यहाँ पे जो है परमेश्वर की So उपस्थिति it was divided in 3 parts: outer court, holy place, holiest of holy. Now we have thanksgiving, praise, and worship. तो पुराने करार में ये तंबू 3 हिस्सों में भागा गया था। एक था बाहर का आंगन, फिर था पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। उसी तरह स्तुति आराधना भी 3 हिस्सों में भागी गई है। धन्यवाद देना, स्तुति करना और आराधना करना। Remember this rectangle piece. There is a gate at the start. You enter from the gate, from this side. Yeah. और अगर हम इस चित्र को देखेंगे तो इसमें एक दरवाजा है जिससे हम अंदर आते हैं। Now let me show you something. Psalms chapter 92 verse 2. 95 verse 2. Sorry. Psalms chapter 95 verse 2. और हम भजन संहिता का 95वां अध्याय और दूसरा वचन देखेंगे। Psalms 95 verse 2. और जैसे वचन कहता है, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। Now, why do we thank God? तो हम परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करते हैं? Not because He has given us anything. और इसलिए नहीं कि उसने हमें कुछ दिया We है। don't thank God because He's given us TV, husband, fridge. We don't thank God for that. और हम परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए नहीं करते हैं कि उसने हमें जो है चीजें दी है, टीवी, फ्रिज या पति दिया है। We thank God because of the goodness of God. हम परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी जो अच्छाई है उसके लिए। Psalms 107 verse 1. भजन संहिता का 107वां अध्याय और एक वचन कहता है, Psalms 107 verse 1. Yeah. और जैसे वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। So whenever you thank God, you have to thank God for His goodness. तो जब कभी भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हमें उसका धन्यवाद करना है उसकी भलाई के लिए। Why do we praise God? हम
हम परमेश्वर की स्तुति क्यों करते हैं? Psalms 145 verse 3. हम भजन संहिता का 145वां अध्याय और तीसरा वचन Psalms देखेंगे। 145 verse 3. भजन संहिता का 145 तीसरा वचन कहता है, यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। We praise God because He is great. We thank God because He is good. We praise God because He is great. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो भला है, हम उसकी स्तुति करते हैं क्योंकि वो महान है। Now why do we worship God? हम परमेश्वर की आराधना क्यों करते हैं? Isaiah 6 verse 1 to 3. Isaiah 6 verse 1 to 3. हम यशायाह का 6 अध्याय 1 से 3 वचन देखेंगे। Why do we worship God? हम परमेश्वर की आराधना क्यों करते हैं? Isaiah. यशायाह 6 अध्याय 1 से 3 वचन कहता है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उसने ऊंचे पर सराब दिखाई दिए, उसके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। और वो एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। So we worship God because He is holy. We thank God because He is good. We praise God because He is great. We worship God because He is holy. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो भला है, हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं क्योंकि वो महान है, और हम परमेश्वर की आराधना करते हैं क्योंकि वो पवित्र है। Now, when we come into God's presence, और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, we cannot enter His presence without doing something. और हम उसकी उपस्थिति में जब तक नहीं आ सकते तब तक हम कुछ ना करें। We cannot enter God's presence without doing something. और हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब तक नहीं आ सकते तब तक हम कुछ ना करें। Psalms 95 verse 2. भजन संहिता का 95 अध्याय दूसरा वचन कहता है, Let's read this again. Yeah. भजन संहिता का 95 अध्याय दूसरा वचन कहता है, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। Let us come before His presence with thanksgiving. Some of the versions says, let us enter His gates with thanksgiving. और जैसे इसमें लिखा है कि हम उसके सम्मुख जो है वो धन्यवाद करते हुए आए, और कोई अनुवाद में लिखा है कि हम उसके फाटकों में प्रवेश करें उसको धन्यवाद देते हुए। Long back when I was in the second standard. और बहुत पुराना बात है, जब पासवान दूसरी कक्षा में थे। So that time we used to have normal dustbins. और उस जमाने में जो है जो कूड़ादान होता था वो साधारण होता था। We had to pick up the cover of the dustbin and put the waste. और जो भी कचरा होता था उसे उस कूड़ेदान में डालने के लिए उसका ढक्कन हटाना पड़ता था और फिर डालना पड़ता था। So one day what happened, I went to my uncle's house. और एक दिन पासवान अपने अंकल के घर गए। And he said, come, I want to show you new dustbin. और उन्होंने कहा कि आओ मैं तुम्हें नया कूड़ादान दिखाता हूँ। Small. और पासवान बहुत छोटे थे। So he was saying, खुल जा Simpson, and the dustbin is opening. खुल जा Simpson, it's opening. और वो इनके अंकल जो है वो कूड़ेदान के सामने खड़े रह के कह रहे थे कि खुल जा सिमसिम, और वो कचरे का डब्बा जो है वो खुल रहा I was था। wondering, my uncle has become a magician now. और ये सोच रहे थे कि इनके अंकल जो है वो जादूगर हो गए। Then I asked him what you were doing. तो इन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रहे He's थे? saying I was operating it from down. The button was down, so it's opening now. तो उनके अंकल ने कहा कि उसका जो बटन है वो नीचे था, मैं उसे दबा रहा था और वो खुल रहा था। The gates of God is closed, but when you open your mouth and give Him thanksgiving, it opens. और उसी तरह जो परमेश्वर के जो फाटक है वो बंद है, और जब हम हमारा मुंह खोलते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं तो उसके फाटक जो है वो खुलते हैं। A sleepy mind cannot give thanks to God. और एक सोया हुआ दिमाग जो है कभी भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकता। Droopy eyes cannot give thanks to God. और जिसकी आंखों में जो है पूरी नींद भरी हुई है या थकी हुई आंखें जो है वो कभी भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे That's why सकती। come to church fresh. और इसलिए पूरी ताजगी से कलीसिया है, So you're awake ताकि आप जगे and हुए you're thanking God for His goodness. और आप उसका धन्यवाद कर रहे हो उसकी भलाई के लिए। Some people come droopy eyes and they drink water again and again to keep themselves awake. और कुछ लोगों की आंखों में इतनी नींद होती है, इतनी थकी हुई उनकी आंखें रहती है कि खुलती नहीं है, और वो बार बार पानी पीते ताकि अपने आप को जगा सके। See one thing, no. Jesus selected 12 disciples. और यीशु मसीह ने जो है वो 12 चेलों का चुनाव किया। And disciple and discipline goes hand in hand. और चेले बनना और अनुशासन में रहना दोनों एक साथ जाता है। It is in hand. If you want to be a disciple of God, you have to be disciplined. But if you just want to be a believer, then you don't need to be disciplined. और अगर आपको यीशु का चेला बनना है तो आपको अपना जीवन अनुशासन के हिसाब से चलना है, और अगर आपको सिर्फ विश्वासी बन के रहना है तो आपको कुछ करने की जरूरत है। 10 years of my life I did night shifts. और 10 साल पासवान के जीवन में उन्होंने रात की जो But है I ड्यूटी never की। slept in church or never I came late.
पर वो कभी भी कलीसिया में सोए नहीं या वो देरी से ना आए। So that is what I'm saying. So don't tell me I've gone, I've done all this, I've passed all the tests. तो पासान ये सारी बातों से जो है वो होकर गुजरे हैं। And I used to also feel sleepy with other human beings, but I used to keep myself awake. और ये भी इंसान है, इन्हें भी जो है थकान होती थी, नींद आती थी, पर ये अपने आप को जो है जागरूक रखते थे। Think about it. Thanksgiving is opening the gates. और अगर हम सोचे जो धन्यवाद देना है वो फाटक खोल रहा है। Grumbling will never open the gate. और गुड़गुड़ाना जो है वो कभी भी वो फाटक नहीं खोलेगा। And you know when a person grumbles, और जब एक इंसान the गुड़गुड़ाता है face also becomes like a small rotting tomato. और उसका मुंह भी जो है वो एक सड़े हुए टमाटर की तरह Yeah, होता you है। take anybody who grumbles. अरे पानी नहीं है, अरे मेरा पति ऐसा है. They start the day only with complaints. और हम किसी को भी देखें जो गुड़गुड़ाते हैं, अगर उनकी शक्ल देखेंगे वो अपनी दिन की शुरुआत ही जो है शिकायत से करते हैं। You need to get up and say, "This is the day the Lord has made. I will rejoice and be glad in it." और आप जब हर सुबह उठते हो तो आपको ये कहना है कि ये आज का दिन जो है वो यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित रहूंगा और मैं इसमें जो है खुशी मनाऊंगा। Sometimes when you come to worship God, और कई बार जब हम परमेश्वर की आराधना करने आते हैं you feel you're worshiping, but you feel that your worship is not reaching God. You feel that. और आपको ऐसा लगता है कि आप आराधना तो कर रहे हो पर आपकी वो आराधना परमेश्वर तक नहीं पहुंच रही। Maybe you have forgotten to give thanks, और शायद इसलिए क्योंकि आप धन्यवाद देना भूल गए and there is a gate closed. और वो एक दरवाजा जो है But वो when you बंद है। give Him praise, when you give Him thanks, the gates will open and you'll enter directly into the presence. और जब आप धन्यवाद दोगे, आप स्तुति करोगे तो वो जो दरवाजा है वो खुलेगा और आप सीधा उसकी उपस्थिति में जाओगे। Even if you can say 3 words, "Thank you, Jesus," that's enough. और आप खाली ये 3 शब्द भी कहो कि धन्यवाद यीशु, ये भी काफी है। Sometimes we thank everybody, but we forget to thank the Lord. और कई बार हम हर किसी को जो है वो धन्यवाद बोल देते हैं पर परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते So हैं। when you come to church, तो जब आप कलीसिया आते हैं, everybody is singing a song. हर कोई गाना गा रहा है, You have to be connected to God. आपको परमेश्वर से जुड़े The रहना है। only way you'll be connected to God by saying thank you, Jesus. और सिर्फ एक ही तरीका है जब आप परमेश्वर से जुड़े हुए रहेंगे, वो है धन्यवाद यीशु बोल के। That is the power of what thanksgiving does. और यही सामर्थ है धन्यवाद देने में। There was a man, for everything he used to say thank you, Jesus. और एक व्यक्ति था जो हर एक बात में, हर एक चीज में जो है वो धन्यवाद यीशु कहता था। He comes late to office, thank you, Jesus. वो ऑफिस देरी से पहुंचता था, वो कहता था धन्यवाद The यीशु। boss shouts at him, thank you, Jesus. अगर उसका बॉस उसे डांट रहा है तो वो कहता था धन्यवाद He gets an यीशु। increment, thank you, Jesus. अगर उसकी बढ़ोतरी होती है तो धन्यवाद So they यीशु। kept his name, thank you, Jesus. तो उन लोग ने उनका नाम जो है वो धन्यवाद यीशु रख Now he दिया। used to work in a coal mine. और वो एक कोयले की खान में काम करता So he था। used to keep his tiffin up on above the ground and go inside and work. और वो जो उसका खाने का जो डब्बा है वो ऊपर रखता था और वो उस खान में नीचे जाता था और काम करता था। So one day he was working तो एक दिन वो काम कर रहा था and there was a lunch break. और वहाँ पे जो है वो दिन के खाने की छुट्टी He हुई। came on top वो ऊपर आया and he saw the dog taking his tiffin and running. और उसने देखा कि कुत्ता उसका डब्बा लेके भाग रहा था And he's running after the dog. और वो उस कुत्ते के पीछे भाग Thank रहा you, था। Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, and he's running. और वो धन्यवाद यीशु बोलते हुए वो भाग रहा था। All his colleagues were laughing at him. What a fool. और उसके साथ जितने भी काम करने वाले लोग थे उसे मूर्ख समझकर उस पे हंस रहे थे। As they went far, the dog and him, और जैसे ही वो कुत्ता और वो व्यक्ति जो है वो बहुत दूर पहुंच गया there was a big explosion in the mine. और बहुत बड़ा विस्फोट जो है उस खान में हुआ Everybody got killed, he got saved. और उसमें मौजूद हर कोई जो है वो मर गया, सिर्फ वो बचा। Don't be afraid to give thanks to God. तो हमें कभी भी डरना नहीं है परमेश्वर को धन्यवाद देने And में। thanksgiving can save you from a big calamity. और वही धन्यवाद देना जो है हमें जो है बड़ी मुश्किलों से बचा सकता No है। matter how the day is, morning you get up, thank you, afternoon thank you, Jesus, evening also thank you. और भले कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिन कैसा है, जब आप सुबह उठते हो तो धन्यवाद यीशु बोलो, दोपहर को धन्यवाद यीशु बोलो, शाम को भी धन्यवाद यीशु बोलो। Psalms 22 verse 3. भजन संहिता का 22वां अध्याय और 3रा वचन। Psalms 22 verse 3. भजन संहिता का 22वां अध्याय 3रा वचन कहता है, Yeah. परंतु हे तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। Our praise makes a throne for God. और हमारी जो स्तुति है वो परमेश्वर के लिए सिंहासन बनाती है। Our praise, when we praise God with our mouths, it makes a throne for God. और जब हम हमारे मुंह से परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो वो उसके लिए एक सिंहासन तैयार करती है। Means what? What happens? Who comes on the throne and sits? God. और उस सिंहासन पे आके कौन बैठता है? परमेश्वर। So when you're regularly giving Him praise, when you're regularly giving Him thanks, when you're regularly giving Him praise, God is coming and sitting on the throne what you have built from your praise. और जब हम लगातार उसे धन्यवाद
धन्यवाद देते हैं, जब हम लगातार उसकी स्तुति करते हैं, तो परमेश्वर उस सिंहासन पर आके बैठता है जो हमने हमारी स्तुति देने और धन्यवाद देने के द्वारा बनाया। But if you grumble, पर अगर हम कुड़कुड़ाते then हैं the evil spirit will come. तो दुष्ट आत्मा आएगी। There are only two things in this world. Okay? Evil spirit, Holy Spirit. और इस Nothing संसार else apart from that. इस संसार में सिर्फ दो ही चीज है, एक है दुष्ट आत्मा और एक है पवित्र आत्मा, उसके अलावा कुछ नहीं। That's why the devil will work overtime to keep your mouth shut during praise and worship. He knows as soon as you praise God, your problems will vanish. और इसलिए शैतान जो है वो अपनी हर एक मुमकिन कोशिश करता है कि स्तुति आराधना के समय वो हमारा मुंह जो है वो बंद रखे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है कि जैसे हम स्तुति आराधना करेंगे, हमारा मुंह खोलेंगे, तो हमारी सारी चिंताएं परेशानियां जाती रहेंगी। Praise and worship is not about the songs. और स्तुति आराधना सिर्फ गानों के बारे में नहीं It is है not about the tune. और वो धुन के बारे में भी नहीं It is है। about the lyrics what you are confessing, because these lyrics have been got from the Bible. When you are confessing those lyrics in praise and worship, you are speaking God's word over your life. और स्तुति आराधना जो है उन बोल के बारे में है जो बोल लिखे गए हैं, और उन बोलों को हम अपने मुंह से जो है अंगीकार करते हैं जो पवित्र शास्त्र से लिए गए हैं। That's why when people come, I make sure that you all are sitting in such a place that you see the lyrics. और इसलिए जब लोग आते हैं तो पास्टर कोशिश करते हैं कि लोग ऐसे बैठे कि जो भी बोल लिखे गए वो हम देख सकें। Don't just murmur. If you don't know anything, don't murmur. See the word. We have put 3 TVs for what? We spent so much lakhs of rupees for what? To you to see and sing. और सिर्फ हम हमारा मुंह बंद करके जो है वो बड़बड़ाए नहीं, पर यहाँ पे जो है वो इतनी सारी स्क्रीन लगाई गई है जहाँ पे हर कहीं पे भी जो है वो गाने दिखाई देते हैं, बोल दिखाई देते We हैं। know people will hide inside behind the walls, so the pastor will not see them, but the TV will see them there. और जैसे लोग जो है वो इस दीवार के पीछे भी छुप जाते हैं कि पास्टर उन्हें नहीं देख सकेंगे, पर वहाँ पे भी टीवी लगाई गई है। What is important? It's not the song, it's not the tune, it's the lyrics. When you sing those lyrics, you are confessing God's word over your life. तो क्या महत्व रखता है? गाना महत्व नहीं रखता है, ना ही धुन महत्व रखती है, पर जो बोल है वो महत्व रखते हैं कि जब हम गाना गाते हैं तो हम परमेश्वर की जो शब्द है, जो वचन है, उसका अंगीकार करते हैं अपने जीवन के Some ऊपर। people, when you play worldly songs, when you play Hindi songs, automatically their body starts moving. और कुछ लोगों के लिए जब हम संसार के गाने बजाते हैं या हिंदी गाने बजाते हैं तो उनका शरीर अपने आप हिलने लगता है। Automatically they start doing disco. Automatically the legs start tapping, the hands move here. They don't know anything about dance. They don't know zilch about dance, but their body starts moving. और उन्हें शायद नाच के बारे में जो है वो कुछ भी नहीं पता होगा, पर जैसे ही संसार के गाने बजाए जाए तो उनका शरीर जो है वो अपने आप हिलने लगता है। But in worship they cannot open their mouths. पर आराधना के समय वो अपना मुंह तक नहीं खोल सकते। फेविकॉल का जोड़ लगा है, कभी खुलेगा नहीं। They cannot open their mouth because Satan has bound their tongue. They cannot open the mouth to praise God. और उनका मुंह जो है वो बिल्कुल भी जो है वो खुल नहीं पाता है आराधना के समय, क्योंकि शैतान ने जो है उनका मुंह जो है वो बंद कर रखा है और वो अपना मुंह नहीं खोल पाते हैं परमेश्वर की The Bible says, out of the fullness of the heart, the mouth speaks. और जैसे पवित्र शास्त्र कहती है जो तुम्हारे हृदय में बातें छुपी हुई है उसके वही बातें तुम्हारे मुख से If you have निकलती worldly हैं। songs in your heart, worldly songs will come out. If you have godly songs in your heart, godly songs will come out of your mouth. और अगर तुम्हारे हृदय में जो है वो संसार के गाने बसे हुए हैं तो तुम्हारे मुंह से वही गाने निकलेंगे, और अगर तुम्हारे हृदय में परमेश्वर के गाने बसे हुए हैं तो तुम्हारे मुंह से वही गाने All निकलेंगे। the people who are very serious in our church during praise and worship, और जितने भी लोग हमारी कलीसिया में स्तुति आराधना के समय बहुत गंभीर रहते call हैं, them to the nightclub. They'll be dancing for joy. और अगर तुम उन्हें नाइट क्लब में बुलाओगे तो वो पूरे आनंद से Parties, they are very excited. और पार्टी के लिए वो बहुत उत्साहित रहते You हैं। know, one of the things in hell, और एक बात है नरक की, people do disco dance because of the fire. They can't burn the fire, so you disco dance to be away from it. So now they are doing rehearsal here only. और वहाँ पे लोग जो है नरक में जो है वो डिस्को डांस करते रहते हैं, हिलते रहते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पे आग इतनी तेज होती है कि वो आग को झेल नहीं पाते हैं, इसलिए संसार में लोग उसकी जो है रिहर्सल करते Don't हैं। take life easy, guys. तो हमें हमारा जीवन जो है इतने हल्के में नहीं Only God लेना। sent me to warn you. और शायद परमेश्वर ने पासा को भेजा है Because हमें 99 चेतावनी of the देने। preachers here are grace preaching. Everything is forgiven. 1% is like me. Straight I tell you. क्योंकि 99% जो प्रचारक होते हैं वो सिर्फ अनुग्रह के बारे में बात करते हैं या धन्यवाद के बारे में I बात am करते not हैं। saying worldly songs are bad. और जैसे पासा ने कहा कि वो ये नहीं कहते हैं कि संसार के Some गाने worldly हैं। songs are destructive. और कुछ ऐसे संसार के गाने हैं जो नाश करने वाले गाने Cut हैं। my life into pieces. This is what song? What is this song? क्या है ये मतलब? What are you saying? There was a believers to hum this song. और जैसे ऐसे गाने हैं कि कट माई लाइफ इनटू पीसेस, ये गाने एकदम बेकार गाने हैं कि हम क्या गा रहे हैं और हम क्या अपने जीवन के ऊपर अंगीकार कर रहे हैं। Your words, what come out from your mouth, you are creating a future. You are creating a harvest for your life.
और जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, हम हमारे लिए एक भविष्य तैयार कर रहे हैं, हम हमारे भविष्य के लिए जो है कटनी तैयार कर रहे हैं। Think about it. Some believers they put photos on Instagram. They are beautiful photos. जैसे कि they are Katrina Kaif and Hrithik Roshan. और कुछ विश्वासी लोग जो है वो इंस्टाग्राम पे अपनी तस्वीरें डालते हैं, इतनी सुंदर सुंदर तस्वीरें डालते हैं जैसे वो कोई हीरो हीरोइन हो, And they put worldly song. और फिर वो उसके ऊपर जो है संसार के गाने And you लगाते हैं, become hallelujah. और वो यहाँ आके जो है वो हालेलुया गाते And हैं, they unhide their profile so that it's very private. अरे God can see it. और फिर वो जो उनकी प्रोफाइल है उसे जो है वो छिपा के रखते हैं जैसे वो उनके तक ही कोई और देख नहीं सके, पर परमेश्वर देख रहा है। Two people we cannot fool in this world. और सिर्फ दो लोग हैं जिनको हम मूर्ख नहीं बना One is सकते, God. एक है Second परमेश्वर is yourself. और दूसरा है You आप। can fool everybody, but at the end you are fooling yourself. और आप हर किसी को जो है वो मूर्ख बना सकते हो, पर अंत में आप अपने आप को मूर्ख We बना have रहे हो। so many beautiful praise and worship songs. So many. और हमारे पास कितने अच्छे सुंदर जो है वो स्तुति आराधना के गाने Why हैं, don't you put your face with that song? तो आप आपका चित्र लगा के वो गाने क्यों नहीं Or डालते? you might be feeling you are very unholy compared to that song. और या फिर आप अपने आप को ऐसा महसूस करते हो कि आप बिल्कुल भी पवित्र नहीं हो उस गाने के मुकाबले। So don't do that. Don't be a hypocrite. तो हमें जो है वो दो मुआ नहीं बनना है। And the more you fill yourself with worldly things, और जितना ज्यादा हम अपने आप को संसार की बातों से भरेंगे, the more the worldly things will come out from your mouth and how you speak. और उतना ही ज्यादा जो संसार की बातें हैं, जो शब्द है वो हमारे मुंह से निकलेंगे। Some people cannot do without the Netflix season 1, season 2, season 3 they have to complete. But Bible one chapter is not done. और कुछ लोगों को जो है वो नेटफ्लिक्स के बगैर जो है वो रह ही नहीं सकते हैं। अगर कोई भी सीरीज आई है तो उसका सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 उन्हें देखना ही है, खत्म ही करना है। पर यहाँ पे पवित्र शास्त्र का एक भी अध्याय उन्होंने पूरा नहीं किया है। Think about if you don't read the Bible. और अगर हम सोचे, अगर हम पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते And in heaven you meet Amos. और हम स्वर्ग में जो है वो अमोस से मिलते And हैं, Amos comes and wishes you hello. और अमोस आके हमें जो है वो हेलो बोलता है। And you say, who's this? You say, who's this Amos? I don't know. He feels so bad. He is in the Bible. You don't know him. और अगर आप कह रही है अमोस कौन है, मैं तो इसे जानता ही नहीं हूँ, तो उसे कितना बुरा लगेगा क्योंकि वो पवित्र शास्त्र में था। That's why I give you free Bibles, but the New Testament. और इसलिए पासवान जो है वो मुफ्त में हमें नया करार देते Not हैं, for you to keep it in the showcase. उसे हम जो है शोकेश में सजा के नहीं रखने के लिए। One day I gave a full Bible to someone. और पासवान एक दिन पूरा पवित्र शास्त्र किसी को दिया, I paid my own money and gave them. और उन्होंने खुद ने उसके पैसे भरे So थे और किसी को that दिया, they read the Bible. ताकि वो पवित्र शास्त्र पढ़ So सके। after many days I followed up. कि, Are you reading the Bible? I was taking house church in their house. और पासवान उनके घर में जो है घर कलीसिया लेते थे, और बहुत दिन के बाद पासवान ने उन्हें पूछा कि क्या तुम पवित्र शास्त्र पढ़ रहे हो? So that person said, yes, I am reading the Bible. I said, just show me your Bible. तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ मैं पवित्र शास्त्र पढ़ता हूँ। तो पासवान ने कहा कि तुम्हारा पवित्र शास्त्र दिखाओ। That person had to climb on the loft and remove the Bible, which she is not reading the Bible. और उस इंसान को जो है वो ऊपर चढ़ के जो है ऊपर से अपनी पवित्र शास्त्र निकालनी पड़ी, मतलब वो नहीं पढ़ रहा था। If your Bible is very clean, अगर आपका पवित्र शास्त्र बहुत साफ है, means you are a dirty Christian. मतलब आप एक गंदे Means मसीही you are हो। not reading the Bible, you are keeping it very clean. इसका मतलब आप पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ But रहे हो। if your Bible is dirty, means you are clean Christian. Means you are again and again reading the Bible and the pages are turning off. और अगर आपकी पवित्र शास्त्र जो है वो खराब हालत में है, तो इसका मतलब आप एक अच्छे साफ सुथरे मसीह हो, क्योंकि आप जो है बार बार उसे पढ़ रहे हो। So our praise makes a throne for God. तो हमारी स्तुति जो है वो परमेश्वर के लिए And सिंहासन only बनाती when है। God sits on the throne, your problems are going to vanish. और जब सिर्फ परमेश्वर उस सिंहासन पर बैठेगा, तभी हमारी समस्याएं जो है वो चली जाएंगी। Because if you sit on the throne, you will not be able to do things. But if God sits on the throne, He'll make the impossible things possible. He'll make things happen what you couldn't make happen. क्योंकि अगर हम वो सिंहासन पर बैठेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर परमेश्वर उस सिंहासन पर बैठेगा तो वो नामुमकिन चीजों को जो है मुमकिन करेगा, और जो चीज हम नहीं कर पाए वो करेगा। So learn to worship God. तो हमें सीखना है परमेश्वर की Some आराधना people have करना। only 3 songs. That 3 songs they are singing from the last 10 years. और कुछ लोगों के पास सिर्फ 3 गाने होते हैं, और पिछले 10 साल से वो 3 ही गाने They गा don't रहे हैं, take interest also in learning new. और वो नए गाने सीखने में दिलचस्पी भी नहीं लेते। See, anytime when we want to learn anything new, और हर बार जब हम कुछ नया सीखना चाहते we हैं challenge our brains. तो हम हमारे दिमाग को Our चुनौती brains देते are हैं, always in a comfort zone. और हमारा दिमाग जो है हमेशा एक आराम के स्थान पे रहता We है don't want to work. We don't want to learn anything new. कितना tough है. कि हम जो है काम नहीं करना चाहते या कुछ नया नहीं सीखना चाहते। ये बहुत कठिन है, Very difficult. बहुत मुश्किल है। Why will I get up and sing songs? मैं सुबह उठ के क्यों गाने गाऊं? But if you train your mind to do new things,
पर अगर आप आपके दिमाग को जो है वो सिखाओगे नई नई चीजें करना, God will bless you with new blessings. तो परमेश्वर आपको नई आशीषों से आशीष You know करेगा। why some people's brains are very active and some people's brains are like a bhusa? और कुछ लोगों का दिमाग जो है वो क्यों बहुत चलता है और कुछ लोगों का दिमाग बिल्कुल नहीं चलता है। Why? Because they are using their brains. वो इसलिए क्योंकि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल It करते हैं। says in 3 years, these brains will fetch you a lot of money because they have not used it only. और जैसे 3 इडियट पिक्चर में कहा गया है कि ये दिमाग जो है वो तुम्हें बहुत पैसे दिलाएगा क्योंकि इसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। Use your brains. तो अपने दिमाग का Do इस्तेमाल new करो। things. Try to worship God with new songs. तो नई नई चीजें सीखने के लिए और परमेश्वर की आराधना करो नए नए गानों के My साथ। last point before we close. और हम बंद करने से पहले आखिरी पॉइंट 2 देखेंगे। Corinthians chapter 3 verse 18. हम दूसरा कोरिन्थियों का 3 अध्याय 18 वचन देखेंगे। दूसरा कोरिन्थियों का 3 अध्याय 18 वचन कहता है, परंतु जब हम सबके उगड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। We become the person we are. The more we worship God, we become more like Him. और हम वो इंसान बनते हैं जो हम हैं, पर जब हम जितनी ज्यादा उसकी आराधना करते हैं तो हम उतनी ज्यादा उसके जैसे बन जाते Why हैं। don't we have idols in our church? Why don't we have a cross? Sorry. क्या मैं इतना महत्व रखता हूँ? नहीं, तुम्हारा इतना कोई मोल नहीं है, It's not important कोई महत्व नहीं है to get validation from the world. कि दुनिया से जो है अब आपको खातिरी पाए। So whom you worship, you become like them. तो जिसकी आप आराधना करते हो आप वैसे बन जाते हो। So you worship Jesus in spirit and truth. You don't put an idol. You can put a cross, but you can't worship the cross. और इसलिए आप यीशु की जो है वो आराधना करो आत्मा और सच्चाई में। आप जो है वो क्रूस रख सकते हो या लगा सकते हो, पर आप उसकी आराधना नहीं कर सकते। I'll reiterate what I shared today. First, praise and worship is like an offering. और हम फिर से दोहराएंगे जो आज हमने सीखा। पहला था कि स्तुति आराधना जो है वो एक तरीके का भेंट है। Praise and worship is made out of 3 parts: thanksgiving, praise, and worship. स्तुति आराधना जो है वो 3 हिस्सों में भागी गई है, धन्यवाद देना, स्तुति करना, आराधना करना। It symbolizes the 3 parts of the tabernacle: the outer court, the holy place, the holiest of holy. और यही बात जो है वो पुराने करार में जो तंबू था उसी पे दर्शाती है, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। Third, thanksgiving opens the gates to God's presence. और धन्यवाद देना जो है वो परमेश्वर के फाटकों को खोलती है उसकी उपस्थिति में जाने के लिए। Fourth, our praise makes God's throne. और चौथा था हमारी स्तुति जो है वो परमेश्वर का सियासत तैयार करती है। Fifth, as we worship, we become like Him. और पांचवा था कि जैसे हम आराधना करते हैं हम उसकी तरह बन जाते हैं। I feel more important than the word in the church और जैसे पास्टर ने कहा कि उन्हें लगता है कलीसिया में वचन से ज्यादा is the worship. स्तुति आराधना महत्वपूर्ण है, Because it's your part to God. क्योंकि वो हमारा भाग है परमेश्वर के लिए। And if you don't worship in the seat, God will never elevate you and bring you here and make you a worship leader. और अगर आप वहाँ पे अपनी जगह पे बैठ के कभी भी जो है खड़े रह के उसकी आराधना नहीं करोगे तो परमेश्वर आपको कभी भी ऊंचा नहीं उठाएगा और आपको एक आराधना लेने वाला अगुवा नहीं बनाएगा। Don't be a spectator during worship, be a participator. और स्तुति आराधना के समय जो है वो ऐसे इंसान मत बनो जो सिर्फ यहाँ वहाँ जो है ताकता रहता है, देखता रहता है कि कौन क्या कर रहा है, पर एक हिस्सा बनो स्तुति आराधना If you का। don't know the lyrics, open your eyes and see the lyrics. और अगर आपको बोल नहीं पता है तो अपनी आंखें खोल के देखें। Don't murmur because I can understand what you're murmuring. You're not singing the song. और सिर्फ अपना मुंह खोल के बड़बड़ाते मत रहो क्योंकि पास्टर हम जानते हैं कि हम गाना नहीं गा As I रहे। told you, the power is in the lyrics, not in anything else. और जैसे पास्टर ने हमें बताया कि जो सामर्थ है वो उस बोल में है और किसी में नहीं। Let's stand in God's presence. आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो Let's जाएं। close our eyes. हमारी आंखें बंद I करेंगे will continue this after 7th. और पास्टर इस वचन को जो है वो आगे बढ़ाएंगे 7 तारीख के बाद। What did we learn in praise and worship today? आज हमने स्तुति आराधना में क्या सीखा? Is it songs? क्या वो गाने हैं? Is it just coming to church on time? क्या वो सिर्फ कलीसिया समय में Is it आना the है? lyrics? क्या वो बोल है? What does this worship and praise